بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحمت دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا کہ شیر، چیتے، بارہ سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑی لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اور کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے۔ میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں اور نکارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ اور ادنا خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزاد رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اس طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ تو چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। नजूमी ने कहा, ए काबिल एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलका असल में इंसान नहीं है बल्कि नागिन है, इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नज़र उस पर ना पड़ी हो, तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है, और अब वो बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। नजूमी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जब वो उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल कबल बादशाह सलामत ने जंगल में एक नाग को हलाक कर दिया था, और वो काला नाग उस नागिन का भाई था और ये इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार डसकर बादशाह सलामत को हलाक कर डाले, मगर वो अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि वो सिसक सिसक कर मरे। शहजादे ने यह सुना तो गुस्से से कांपने लगा। म्यान से तलवार निकाल कर लहराई और कहा, मैं उस बदबख्त नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब ना होगा। वो बड़ी चालाक नागिन है, अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज ना छोड़ेगी और डस लेगी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी बाबा, शहजादे नागिन को आप सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हैं जब वो नागिन के रूप में हो। आपका तीर सीधा उसके फन में जाकर लगना चाहिए। याद रखें, अगर आपका निशाना खता हो गया तो आप नागिन के गुस्से से कभी ना बच सकेंगे, वो आपको डसकर हलाक कर देगी। लेकिन ऐ नजूमी बाबा, मैं मलका को इंसान से नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? उसका हल भी मेरे पास है। मैं आपको एक ख़ास दवाई की पुड़िया देता हूँ। आज रात का खाना खाते वक्त होशियारी से वो दवा पानी में हल करके मलका को पिला दीजिएगा और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना। ख्वाबगाह के दरवाजे पर ताला लगा देना। इस दवाई के असर से आधी रात के वक्त मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वो आप खुद ही देख लेंगे। मगर एक बात ध्यान से सुन ले, ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मलका को ज़रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। नजूमी बाबा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर शहजादा वापस महल में आ गया। रात हुई, खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी होशियारी से दवाई मलका के पानी के गिलास में डाल दी। मलका को पता ही ना चल सका और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद ही शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानगी से कहा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने बहुत कम खाना खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी। आप इत्मीनान से खाए, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल आया। वो तेजी से दौड़ता हुआ बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा और सुराही का पानी बहा दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छुप गया। कुछ देर बाद ही मलका ख्वाबगाह में चली गई। शहजादे ने फौरन नजूमी की हिदायत के मुताबिक पर बाहर ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में बैठ गया। बादशाह और मलका मुसहरी पर पड़े सो रहे थे। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो यकायक मलका को ज़ोरदार प्यास लगी। वो उठी और सुराही से पानी लेना चाहा, मगर सुराही तो शहजादे ने पहले ही खाली कर दी थी। मलका ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान में छुपा बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवाई के असर से मलका को ऐसी ज़बरदस्त प्यास लगी कि उसका मुंह खुल गया। उसे यूं लगा जैसे हलक में कांटों का जंगल उगाया हो। मलका परेशान हो गई थी कि कहाँ से पानी हासिल करके प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक छोटी सी नाली बाहर को जाती थी। ये खाली नाली गंदे पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागिन बनकर नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दबे कदमों बादशाह के पास आई। बादशाह तो सारे घोड़े बेचकर सो रहा था। मलका को जब ये इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर सोया पड़ा है तो उसने ज़मीन पर एक लोड लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर एक मलका की जगह एक स्याह नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब ये मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी बाबा ने सच ही कहा था। नागिन की स्याह खाल चमक रही थी
वो बल खाती लहराती नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे को वक्त ही न मिल सका कि तीर चला सके। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा, घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी, चांद की जर्द रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मलका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने फन फैलाकर एक जोरदार फनकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छुपा खड़ा था कि मलका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था कि वो महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलका उस रास्ते पर होली जो जंगल को जाता है। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती। नागिन मलका घने जंगल में पहुंच गई। एक गार के बाहर रुककर उसने जोरदार फुनकार मारी। उसके फुनकार के जवाब में गार के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फुनकार सुनाई दी। उफ खुदाया, कैसी भयानक फुनकार थी! वो जैसे बैक वक्त कई देगें चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हों। फुनकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाज़ें आईं और फिर एक निहायत ही बड़ा अजदहा नुमा नाग गार से बाहर निकल आया। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था जिससे तेज शुआएं निकल रही थी। ये जंगल का शीश नाग था जो नागन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शीशनाग की आंखें शुरू की माने देख रही थी और वो दो शाखें जुबान बिजली की तरह लबलबा रहा था। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागन शीशनाग से लिपट गई और वो दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। वो इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में मौजूद था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। कुछ देर तक नागिन और नाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शीशनाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का फैला हुआ गलीज चपटा सर उसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया, तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फुनकारी सुनकर शीशनाग बड़ी गजबनाक अंदाज में फुनकारता गार से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शीशनाग की दाएं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा, नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने झट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाएं आंख भी खत्म हो गई। शीशनाग अंधा हो चुका था, उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फुनकारे मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने पैदल पे तीर चलाया, नाग को हला कर दिया और दरख्त से नीचे उतराया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं कोई और सांप तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थीं जो रास्ता भटक कर शीशनाग के गार की तरफ आ निकले थे और नाग ने उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शीशनाग का फन खंजर से चीर कर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानित चमकदार होता है। इसमें यह खासियत होती है कि ये जहर को चूस लेता है। शीशनाग के मन को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मलका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा, रात की तारीकी छटने लगी थी। महल के मुहावजों ने जब शहजादे रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए और उस वक्त उनकी चीखें निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा रहा।
शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। इस ख्याल ने ही इस पर कपकपी तारी कर दी थी कि वो खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था। उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन मलका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग भाई का बादशाह से वो इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागिन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। अब्बा हजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छी औलाद तो वो होती है जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है और उनका हर हुक्म मानती है। ये कहकर शहजादे रहमान ने शीश नाग के मन को जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फौरन नागिन का जहर चूस लिया और बादशाह भला चंगा हो गया। उसी वक्त नागिन मलका का जिस्म तड़ तड़ के जलने लगा और देखते ही देखते वहां राग के छोटे से ढेर के सिवा कुछ न बचा। फारस ने तख्तो ताज अपने बेटे रहमान के स्पुर्द कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया।